Hello, good morning students. So welcome back on my YouTube channel Math Mentor. So today I am going to finish this topic indefinite integration, MST CET of indefinite integration. In some previous video lecture we completed first 230 MCQs. So means what? Just 20 MCQs are remaining. In this video lecture we are going to finish this last 20 MCQs of this topic indefinite integration. Okay, लेकिन मैं इस टॉपिक इस वीडियो लेक्चर में पूरे एमसीक्यू सॉल्व करके नहीं दूंगा। अब तक मैंने 230 एमसीक्यू कैसे सॉल्व करके दिए, पूरे सॉल्यूशन एंड उसका ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। बट आज फाइनल लेक्चर है इस टॉपिक का, तो मैं सिर्फ हिंट दूंगा। कुछ एग्जांपल्स डेफिनेटली जो हार्डर लेवल के हैं, क्रिटिकल थिंकिंग के, वो मैं डेफिनेटली सॉल्व करके दूंगा। बट जो कॉमन एग्जाम्पल्स है वो जब सबके कुछ टाइप के एग्जाम्पल्स हुए तो मैं उस एग्जाम्पल की हिंट दूंगा, आपको सिर्फ उसको सॉल्व करना है और करेक्ट ऑप्शन कमेंट बॉक्स में देना है। ओके, सो लेट्स स्टडी द नेक्स्ट एमसीक्यू 231। सो व्हाट इज 231? रीड द क्वेश्चन। इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, दिस इज 231, is equal to 2 times f of x whole cube plus c, and we have to find this f of x. हमें f of x find करना है. So this is a completely fundamental theory of integration. So just see what is a integral of cos x. So cos x is equal to sin x plus c. But here cos x is nothing but cos x is equal to, it is a derivative of sin x plus c. Sin x plus c. So what is cos x? Cos x is a derivative of sin x. It means integral of cos x is what? Sin x plus c. Because cos x is nothing but derivative of sin x plus c. So हमें ये function find करना है. So this function f of x which is equal to d by dx of 2 into f of x whole cube plus c. So find out derivative. It's 2 f of x raised to 3. It's 3 into f of x square into d by dx of f of x, d by dx of f of x plus c का डेरिवेटिव कितना है? प्लस 0. राइट. So 2f of x raised to n into f of x raised to n minus 1 into derivative of f of x. Okay, so it becomes left hand side is f of x. So this f of x and this f of x getting cancelled. Here is 1 is equal to 6 times f of x, 6 times f of x into d by dx of f of x, d by dx of what? f of x. ये dx लेफ्ट हैंड साइड में dx, एक 6 लेफ्ट हैंड साइड में 1/6 अपॉन dx लेफ्ट में इंटू dx इंटू 6 मल्टीप्लाइड था लेफ्ट में 1/6 बन गया. इट इज इक्वल टू f of x इंटू d by derivative of f of x. Right, now integrating on both side, integrating of 1/x dx is equal to integral of f of x into d by dx of f of x, derivative of f of x, integral with respect to x, integral with respect to x. What will be this? So this is f of x, this is a derivative of f of x. So 1/6 integral of 1 is x is equal to f of x raised to n into derivative of f of x. That the result is what? f of x raised to 2 divided by 2 with respect to x है. राइट, वहाँ पर प्लस 3 लिखो अब. So now this 2 and this 2 cancel, 2 3s are 6. So x by 3 is equal to f of x square. So now what is f of x? f of x is equal to square root of x by 3. So this is answer. हमें f of x फाइंड करना था, वो कितना आ गया? रूट x by 3. So root x by 3 option is what? D. So this is a completely JEE main exam based example. Okay.
but absolutely depends on the fundamental concept of integration, right? So this is the example. Integration of cos x is sin x plus c, because derivative of sin x plus c is cos x. So here f of x is nothing but derivative of this, f of x is nothing but derivative of this. सिर्फ उसको सॉल्व करना है और ऐसे इसमें फॉर्म में लाना है. सो व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बाय 3. ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 231. मैं ऐसे एग्जाम्पल इस वीडियो में सॉल्व करके दूंगा जो कभी अब तक कभी हुए नहीं है, डिफरेंट थिंकिंग के, डिफरेंट लॉजिक के हैं, डिफरेंट जजमेंट के, वो मैं डेफिनेटली सॉल्व करके दूंगा. बट कुछ एग्जाम्पल जो बहुत बार हुए हैं, उस टाइप की प्रैक्टिस हमने बहुत बार की है, उसकी सिर्फ मैं आपको हिंट देने वाला हूँ. ओके, बिकॉज दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन. ओके, सो लेट्स सी द MCQ नंबर 232. MCQ नंबर 232. इंटीग्रल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर dx. बहुत बार ऐसे एग्जाम्पल हुए. सो वी पुट दिस इज इक्वल टू t. यहाँ पर 1 प्लस एक्स रेस टू 1/3 इज इक्वल टू t पुट करो. डेफिनेटली ये उसका डेरिवेटिव बन जाएगा, दैट बिकम्स एक्स रेस टू 2/3. इसका डेरिवेटिव डेफिनेटली एक्स रेस टू माइनस 2/3 dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा. इट्स रूट t रेस टू हाफ प्लस dt, t रेस टू 3/2 अपॉन 3/2 अपॉन 3/2 मीन्स इंटू 2/3, 2/3 इंटू 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स रेस टू 3/2. ये उसका आंसर बन जाएगा. सो चेक करो, ये उसका आंसर है. दिस इज 232. नाउ 233. सिर्फ हिंट दूंगा भाई, बहुत बार हुए ऐसे एग्जाम्पल्स. सो हियर क्यूब रूट ऑफ x 7th रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x रेस टू 4. सो मैं पहले क्या करता हूँ, इस टर्म को पहले लिखता हूँ. दिस इज अ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x रेस टू 4 में से x रेस टू 4/3 रेस टू 1/7. 7th रूट मीन्स 1/7 और ये जो टर्म है x रेस टू 1/3 dx. दिस एंड दिस आर एब्सोल्युटली सेम. नाउ द हिंट इज व्हाट, पुट दिस टर्म इज इक्वल टू t. इसको t पुट करो और सॉल्व करो. डेफिनेटली उसका ये डेरिवेटिव बन जाएगा. जो भी कांस्टेंट टर्म आएंगे वो राइट साइड में ट्रांसफर करो. दैट विल बी समथिंग, ये 4/3 तो उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ये 4/3 इंटू एक्स रेस टू माइनस 1/3 और प्लस 1/3. सो ये 4/3 राइट साइड में 3/4 बन जाएगा. दिस इज पार्ट ऑफ कैलकुलेशन. ट्राई टू सॉल्व 233. ओके, नाउ 234. 234 में क्या है, इंटीग्रल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स. रूट 1 माइनस एक्स, ये भी कॉमन बहुत एग्जाम्पल ऐसे हुए. आपको यहाँ पर क्या करना है, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करो. 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर. सो डिनोमिनेटर बिकम्स रूट टी स्क्वायर, दैट इज टी. और यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है. सो एक्स की वैल्यू क्या आएंगी, एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर. एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट करो, 1 माइनस एक्स की जगह पर ये वैल्यू पुट करो और dx की जगह पर इसका डेरिवेटिव माइनस 2t dt. दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू x. So this is the hint for 234, MCQ number 234. You have to mention the answer in the comment box. Okay, so this is a 234. Now 235, different example है. 235. 235. What is 235? Numerator cubic equation, x cube minus 4x square plus 6x plus 5 divided by x square minus 2x plus 3 dx. So here degree of numerator is greater than the degree of denominator. Numerator की highest degree 3 है, it's a cubic equation. यहाँ पर degree 2 है, it is quadratic equation. So we can divide. So this is actual division method. This term is divisor, x square minus 2x plus 3. ये डिविडेंट
यहाँ पर एक्स क्यूब लाना है तो इस यहाँ पे एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x. साइन चेंज ऑलवेज, दिस टर्म ऑलवेज कैंसल. माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर इज माइनस 2x स्क्वायर. 6x माइनस 3x इज प्लस 3x. इसको कैरी करेंगे प्लस 5. यहाँ पर माइनस 2x स्क्वायर ही लाना है तो माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस इज माइनस 2x स्क्वायर. माइनस 2 इंटू माइनस 2x इज प्लस 4x. माइनस 2 इंटू प्लस 3 इज माइनस 6. दिस इज प्लस माइनस प्लस. ये टर्म ऑलवेज कैंसिल होना चाहिए. 3x माइनस 4x, दिस इज माइनस 4x, इट इज माइनस x. 5 प्लस 6, दिस इज प्लस 6, it is plus 11. This is the dividend, sorry, this is a quotient, this is a dividend, divisor and a remainder. Now formula, always dividend upon divisor is equal to quotient plus remainder upon divisor. ये फॉर्मूला है. इट इज algebraic formula. Q for quotient, R for remainder. So dividend upon divisor is nothing but I is equal to, now it is a quotient is x minus 2 plus remainder is minus x plus 11 divided by divisor is what, x square minus 2x plus 3. Okay, now we have to solve this. इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 आएगा, माइनस 2 का इंटीग्रेशन माइनस 2x आएगा. नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म. सो इसको लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म से आपको सॉल्व करना है. सो मैं आप पे डिपेंड ये सॉल्व करने को आपको देता हूँ. इसको सॉल्व करो कम्प्लीटली. सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर दिस रैशनल फंक्शन. When numerator, degree of numerator is greater than the degree of denominator, then that time no option, only actual division method. So write that quotient plus remainder upon divisor. इसको आप फाइनल कर सकते बिकॉज वी आर ऑलरेडी कंप्लीटेड 230 MCQs. सो बहुत सारी प्रैक्टिस हुई है. इस वीडियो लेक्चर में मैं सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्व करके नहीं दूंगा. ओके, सो नेक्स्ट इज 236. बहुत ही सिंपल टाइप एग्जाम्पल. 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स. बस आपको क्या करना है, सेपरेट डिवाइड करना है. ये देखो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स. ये फैक्टर कट, ये फैक्टर कट. सो 1 बाई एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू माइनस 3, एक्स रेस टू माइनस 3 का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू माइनस 2 अपॉन माइनस 2. एक्स इंटू 1 प्लस एक्स है तो प्लस एक्स माइनस ऊपर एक्स है, एक्स स्क्वायर पूरा कट हुआ ना, ऊपर 1 है. सो 1 प्लस एक्स करो माइनस एक्स करो, एडजस्टमेंट और एक बार करना पड़ेगा. यहाँ पर सेपरेट डिवाइड किया बस. सो इसको राइट साइड में आंसर दिया है, उसको कंपेयर करना है और फाइंड करना है. सो के की वैल्यू -1/2 है. क्लियर, -1/, इसका एक्स रेस टू माइनस 3 है. एक्स रेस टू माइनस 3 का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू -2 अपॉन -2 मीन्स -1/2 एक्स स्क्वायर, -1/2 एक्स. सो आइदर ये ऑप्शन आना चाहिए ना तो बी आना चाहिए. सी एंड डी आर ऑलरेडी eliminated. Okay, so this is 236. now 237 आपको फाइनल करना है एग्जाम्पल. x रेस टू 4 माइनस एक्स रेस टू 1/4 डिवाइडेड बाई एक्स रेस टू 5. यहाँ पर भी मैं एक हिंट देता हूँ, यहाँ से x रेस टू 4 कॉमन ले लो, 1 माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा. टेकिंग x रेस टू 4 कॉमन, 1 माइनस एक्स क्यूब, इसका रेस टू 1/4 होल रेस टू 1/4 अपॉन एक्स रेस टू 5. एक्स रेस टू 4 रेस टू 1/4, 4 कैंसिल, ओनली एक्स इंटू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब रेस टू 1/4 अपॉन एक्स रेस टू 5. यहाँ का x और यहाँ का x कैंसिल, एक्स रेस टू 4 रहेगा. नाउ हिंट इज व्हाट, पुट दिस टर्म इज इक्वल टू t.
इस टाइप के भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं. सो व्हाट इज दैट? We have to put 1 minus 1 upon x cube is equal to t. Okay, this is a hint for this example. Try to solve and tell me the answer of MCQ of this question with option in the comment box. Okay, now 238 repeated example शायद है. 5 raised to 5 raised to 5 raised to x, 5 raised to 5 raised to x, 5 raised to x dx. ये पार्ट टी पुट करो और सॉल्व करो. डेफिनेटली आपको आंसर आएगा. राइट साइड में आंसर गिवन है, आप सॉल्व करो. ये टी पुट करो. 5 रेस टू टी का डेरिवेटिव क्या? 5 रेस टू एफ ऑफ एक्स का 5 रेस टू एफ ऑफ एक्स इंटू लॉग 5 इंटू एफ डैश ऑफ एक्स. What is f dash of x? 5 raised to 5 raised to x into log 5. What is 5 raised to x? 5 raised to x into log 5. Log 5 log 5 log 5. That is log 5 cube. Right side में log 5 cube. So my 3 आंसर आएगा ए ऑप्शन. ट्राई करो, बहुत ही सिंपल है. ओके, नाउ 239 हिंट दे दी मैंने. ये भी बहुत टाइम हुआ है ऐसा एग्जाम्पल. dx डिवाइडेड बाय cos क्यूब x रूट sin 2x. सो पहले sin 2x का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है. ये cos रेस टू क्यूब x sin 2x मीन्स 2 sin x इंटू cos x. cos x डिवाइड करो, इसको डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर x, ऊपर भी 1 बाय cos स्क्वायर x. ये cos स्क्वायर अंदर जाने के बाद cos बन जाएगा, cos cos कैंसिल हो जाएगा. सो देखो इसको सॉल्व करो, फाइनलाइज करो. डिवाइड किया मैंने. सो tan ये भी एग्जाम्पल ऐसे एग्जाम्पल हुआ है, चेक करो शीट में रिपीट होगा एग्जाम्पल. सो मैंने हिंट दिया आपको 1 बाय cos स्क्वायर मीन्स cos स्क्वायर x से डिवाइड करना है आपको. ठीक है, नहीं तो ये cos, हाँ ये करेक्ट है. इसी टेक्निक से सॉल्व करो, यू विल गेट द आंसर. दिस इज अ 239. ओके, नाउ नेक्स्ट. Now MCQ number 240. It's a cot raised to 4x. Even पावर है cot की. हम इसको cot स्क्वायर करेंगे. cot स्क्वायर इंटू cot स्क्वायर. बट नो वन इज इंटीग्रेबल. अभी कोई भी फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है. सो इस cot स्क्वायर को पहले एज इट इज रखेंगे. इस cot स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x माइनस 1 करेंगे, बिकॉज cosec स्क्वायर इज अ इंटीग्रल फंक्शन. उसका इंटीग्रेशन माइनस cot x होता है. अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे. सो cot स्क्वायर x इंटू माइनस 1 इज माइनस cot स्क्वायर x. फिर उसको अगेन cosec स्क्वायर x माइनस 1 करेंगे. देन एंड देन ओनली दिस कंप्लीट फंक्शन विल बी इंटीग्रेबल. ओके, सो पहले cot स्क्वायर x को cosec स्क्वायर x माइनस 1 के अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद और एक cot स्क्वायर x टर्म मिलेंगी, वो भी इंटीग्रेबल नहीं है. सो उसको फिर एक बार cosec स्क्वायर x माइनस 1 करेंगे, बट यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस cosec स्क्वायर x प्लस 1 बन जाएगा. सो उसको फाइनलाइज करो, डेफिनेटली आपको आंसर मिलेगा. दिस इज अ 240 MCQs. नाउ 241 sin 4x इंटू साइन 7x. एग्जाम्पल 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो. 2 sin a इंटू साइन बी. शायद ये भी एग्जाम्पल एक बार हुआ है. 2 sin a इंटू साइन बी. इट इज़ अ डिफैक्टराइजेशन फार्मूला एंड वी आर वेरी मच फैमिलियर विद दिस फार्मूले. फैक्टराइजेशन डिफैक्टराइजेशन फार्मूले. सो वही आप यहाँ पर अप्लाई करना है फार्मूला cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी. ये जो उसका फार्मूला है उसको यूज़ करो, डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस MCQ. ये एग्जाम्पल हुआ है एक बार. तो 93 नंबर का शायद 2 cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, वही फार्मूला है उसका. ये ऑप्शन डेफिनेटली आएगा. ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 241. नाउ 242. ये 242 टाइप के एग्जाम्पल बहुत सारे हुए हैं और ये एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू मी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज अ नॉट कॉमन लॉजिक एग्जाम्पल्स. सब्स्टिट्यूशन है बट कॉमन नहीं है, कोई भी टाइप की नहीं है, डिफरेंट है.
सो इस पार्ट को मैं टी पुट करना चाहूँगा, दिस इज टी। 7 का तो डेरिवेटिव 0 है, -3 तो कोएफिशिएंट है, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, सिर्फ -3/2 राइट में ट्रांसफर करना है, -2/3 बन जाएगा। उसको आपको सिंप्लीफाई करना है, दैट विल बी योर आंसर। दिस इज 242। नाउ 243, 1/1 प्लस e रेस टू एक्स। सो e रेस टू एक्स को रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/1 प्लस 1 e रेस टू माइनस एक्स। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ये ऊपर जाएगा। दिस इज नॉट डायरेक्टली इंटीग्रेबल। सो पहले उसको रेसिप्रोकल लिया, 1/e⁻⁻x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद ये ऊपर जाएगा, इसको t पुट करो, देन यू विल गेट द आंसर। ओके, सो दिस इज 240, 241, 242, 243। हर टाइप में मैंने आपको सिर्फ हिंट दी है, एंड आई हैव लॉट्स ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप डेफिनेटली इसको सॉल्व करेंगे, और आपको हर MCQ का ऑप्शन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन। नाउ 244, लेट्स 244 इज अ ऑड पावर ऑफ सम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, tan क्यूब एक्स इंटू सेक क्यूब एक्स। इसके दो आंसर अलग अलग आएंगे, इन टर्म्स ऑफ tan भी आना पॉसिबल है, इन टर्म्स ऑफ सेक भी आना पॉसिबल है, बट यहाँ पर राइट साइड में सेक है, सेक, तो हमें पुट करना है सेक एक्स इज इक्वल टू टी। अगर सेक एक्स इज इक्वल टू टी पुट करना है तो उसका डेरिवेटिव यहाँ पर होना चाहिए सेक एक्स इंटू टैन एक्स। यहाँ से एक सेक स्प्लिट किया, सेक स्क्वायर एक्स टैन स्क्वायर एक्स, देन पुट सेक एक्स इज इक्वल टू टी। सो उसका डेरिवेटिव सेक एक्स डी एक्स है, सेक एक्स टैन एक्स डी एक्स। इस टैन स्क्वायर को सेक स्क्वायर एक्स -1 करो, और सेक एक्स इज इक्वल टू टी पुट को, ये सेक एक्स इज इक्वल टू टी, सेक एक्स इज इक्वल टू टी, टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर -1, टी रेस टू 4 माइनस टी स्क्वायर, टी रेस टू 5/5, टी रेस टू 3/3। सो टी रेस टू 3/3, टी रेस टू 5/5, सो 1/5 एंड 3 आंसर। सो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल है। ओके, सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ 244। नाउ 245 क्या है, साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन कॉस ऑफ लॉग एक्स है। साइन ऑफ लॉग एक्स अपॉन कॉस ऑफ लॉग एक्स इज टैन ऑफ लॉग एक्स, वहाँ पर 1/x भी है। सो लॉग एक्स इज इक्वल टू टी पुट करो, उसका ये डेरिवेटिव टैन टी, टैन टी का इंटीग्रेशन क्या है, लॉग ऑफ सेक टी। लॉग ऑफ सेक टी मीन्स व्हाट, लॉग ऑफ सेक ऑफ लॉग एक्स प्लस सी। सॉल्व करने की जरूरत है, ऑप्शन कितना है, सी है। सो दिस इज 245। ओके, नाउ 246। अब 246 क्या है, देखो यहाँ पर 1/x है और अगेन log 1/x है, तो इट्स अ कन्फ्यूजन ओनली। डोंट पुट 1/x इज इक्वल टू टी, 1/x टू -1/x स्क्वायर होता है, वो यहाँ पर नहीं है। सो क्या करेंगे, 1/x इज x रेस टू -1, log x रेस टू -1 इंटू 1/x, दिस 1/x कैरी एज इट इज, x रेस टू -1 इज माइनस log x, minus log x 1/x dx, दिस इज f ऑफ x, ये f डैश ऑफ x, रेस टू n है, 1 पावर है। सो log x होल स्क्वायर बाय 2 माइनस log x होल स्क्वायर बाय 2, ये उसका आंसर है। सो दिस इज आंसर व्हाट, बी। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। 247 नाउ, 247 इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये टाइप के एग्जाम्पल डेफिनेटली आएंगे। अलग है लॉजिक यहाँ पर, देखो डिनोमिनेटर में टैन साइन कॉस, सॉरी ऑप्शन में कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, 1/cos स्क्वायर इज एक्स, सेक स्क्वायर एक्स, डिवाइड ऑन बोथ साइड बाय cos स्क्वायर एक्स। नीचे cos स्क्वायर अंदर जाने के बाद, रूट में जाने के बाद cos रेस टू 4 बनेगा, cos रेस टू 4 में से cos क्यूब गया, सो साइन बाय cos एक्स इज tan एक्स, नीचे tan x, ऊपर सेक स्क्वायर एक्स, रूट tan x से नीचे, सो f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x, उसका इंटीग्रल कितना होता है, 2 रूट f ऑफ x प्लस सी, 2 रूट tan x प्लस सी। सो दैट इज आंसर। सो दिस इज 247। नाउ 248, 1/x स्क्वायर e रेस टू a/x, e रेस टू a/x dx, इसको ऊपर लेंगे, e रेस टू माइनस a/x अपॉन एक्स स्क्वायर dx। सो माइनस a/x इज इक्वल टू टी पुट करेंगे,
माइनस ए बाई एक्स, ये तो कांस्टेंट है, इट इज कोएफिशिएंट एज इट इज. व्हाट इज योर डेरिवेटिव ऑफ 1 बाई एक्स? माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, माइनस 1 बाई एक्स का प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर. सो प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर यहाँ पर टर्म है, तो ये रेस टू टी बन जाएगा. सो उसका डेरिवेटिव सिंटेशन सिंपल ए रेस टू टी होता है, सिर्फ उसमें जो माइनस ए है राइट साइड में प्लस 1 बाई माइनस 1 बाई ए हो जाएगा. सो इट्स आंसर इज, आई थिंक आंसर सी, नहीं तो ये आएगा. ओके, दिस इज 248. सो लास्ट 2 एग्जाम्पल्स आर रिमेनिंग. ओके, राइट नेक्स्ट. Now 249 and 250, last 2 examples of this topic, indefinite integration. Look at the 249 now. 249, very typical type of example now. Now it becomes typical. Actually it is a critical. बहुत बार हुआ है, so it becomes typical. x minus x cube divided by x raised to 4. Numerator x cube common ले लो, x cube raised to 1 by 3 is x. 1 upon x square minus 1 whole raised to 1 by 3 divided by x raised to 4. x और x कैंसल, x क्यूब बन जाएगा. ये पार्ट आपको टी पुट करना है. अगर न्यूमरेटर से x क्यूब कॉमन लिया तो x क्यूब रेस्ट टू 1 बाई 3 वो बाहर आके x बन जाएगा. x अपॉन x क्यूब 1 बाई एक्स स्क्वायर, x क्यूब अपॉन x क्यूब 1. नाउ पुट दिस टर्म इज इक्वल टू टी. ये x और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, x क्यूब रहेगा. 1 अपॉन x क्यूब डेफिनेटली इसका डेरिवेटिव आएगा. जो भी कांस्टेंट टर्म है वो राइट साइड में शिफ्ट करो, दैट बिकम्स योर आंसर. नाउ लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस वर्कशीट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज 250 log x अपॉन log ex होल स्क्वायर, log x अपॉन log ex होल स्क्वायर. फर्स्ट सॉल्व करना ये log x, log e प्लस log x मीन्स 1 प्लस log x होल स्क्वायर. यहाँ पर log x इज इक्वल टू टी पुट करो, t अपॉन 1 प्लस टी होल स्क्वायर. dx इज e रेस टू टी dt, e रेस टू टी dt. log x t पुट किया बट x इज इक्वल टू e रेस टू टी हो जाएगा एंड dx इज इक्वल टू e रेस टू टी dt बन जाएगा. ऊपर प्लस 1 माइनस 1 करो, सेपरेट सॉल्व करो, उसका आंसर बन जाएगा e रेस टू टी अपॉन 1 प्लस टी. e रेस टू टी मीन्स x अपॉन 1 प्लस लॉग x, ये उसका आंसर. कोई भी MCQ सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका होता है, माइंड में कैलकुलेशन करो, कुछ स्टेप्स माइंड में करो. 1-2 स्टेप 3-4 स्टेप आप अगर आपने स्किप की तो कोई भी एक MCQ आपका विद इन टाइम डेफिनेटली सॉल्व होगा. हर MCQ को मैक्सिमम 90 सेकंड होते, लेकिन हर एग्जाम्पल 90 सेकंड में ही सॉल्व होना ज़रूरी नहीं है. कुछ एग्जाम्पल 10, 20, 30 सेकंड में सॉल्व होते हैं और कुछ एग्जाम्पल 2, 3, 4 मिनट में लग सकते हैं. ये सिर्फ आपको टाइम मैनेजमेंट करना है. MST CT MCQ सॉल्व करने में सबसे बेस्ट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट. जो भी बचा हुआ टाइम है उसको हमें नेक्स्ट MCQ में यूटिलाइज करना है. जो टफ एग्जाम्पल है, जो क्रिटिकल है, लेंथी है, उसमें वही टाइम हमें यूज़ करना है. ओके, लेकिन हर MCQ 90 सेकंड में सॉल्व करने वाले नहीं होते. ओके, इज इट क्लियर? सो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ द एक्सट्रीमली मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द सिलेबस, दैट इज इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. सो इस टॉपिक के लिए 5 MCQ डेफिनेटली रिजर्व होते हैं. 5 MCQ मीन्स 10 मार्क्स फॉर दिस टॉपिक. सो एक टॉपिक के लिए 10 मार्क. टोटल मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी टॉपिक के लिए है, इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. और उस टॉपिक के हमने 250 MCQ सॉल्व किए. सो 250 में से 10-12 एग्जाम्पल, 15 एग्जाम्पल, मैक्सिमम 15 एग्जाम्पल रिपीटेड हुए होंगे. ऑलमोस्ट 230 हमने इस टॉपिक पे एग्जाम्पल्स किए. सो दिस इज़ अ वेरी मच सफिशिएंट स्टडी फॉर दिस टॉपिक इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. और इसके बाद जो टॉपिक है वो डेफिनाइट इंटीग्रेशन है, which topic is absolutely depends on this topic, that is indefinite integration. Okay, so इस लास्ट वीडियो के जो भी एग्जाम्पल मैंने सिर्फ आपको हिंट दिए उसको कंप्लीट करना है, आपको ऑप्शन में कन्वर्ट करना है और जो भी आंसर आएगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. सो तभी आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा. ओके, सो इट्स वेरी मच हैप्पी टू अनाउंस
that this topic is completed. So from next day, from next video lecture, we'll start the next topic is indefinite, that is definite integration. Okay, so for that stay tuned on this YouTube channel Math Mentor. And once again, अगर आपको इस टॉपिक की वर्कशीट चाहिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF की लिंक दी है, उसको क्लिक करो, उसको मैं एक्सेस दूंगा और आपको वो फाइल आपको PDF फॉर्मेट में आपके मोबाइल में सेव हो जाएंगी. ओके, सो दिस इज़ अ वर्कशीट फॉर यू. ओके, हर टॉपिक की PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन की हुई, उसको रीड करो, उसको क्लिक करो, ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगी, लेकिन मैंने उसको एक्सेस दिया तो भी डाउनलोड हो जाएंगे. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. स्टे ट्यून ऑन दिस यूट्यूब चैनल मैथ मेंटर. ओके.